Hello my dear students, how are you all? I hope you all are well. Students, as you all know that we have started this chapter matter in our surrounding, right? And in your previous lecture we were discussing about particularly properties of solid that we have completed. Today what we are going to we are going to discuss the continuation of physical states of matter along with their properties. Okay, so let's start our today's topic, properties of liquid. Okay, now this topic is not new to you, right? We have been already studying this from your very early classes, or I would say from third, fourth standard. So we are quite aware about the properties and the particularly characteristic of liquid. So the first characteristic or the first property of liquid says that liquid is not rigid. What it says? Liquid is not rigid. Rigid means what? Which is having a constant shape. So water can have, a liquid can have a constant shape? No, it cannot. That is why the first property is very true, that liquid is not rigid. It cannot have a constant shape. If we keep it free, what will happen? The liquid will flow wherever in whichever direction it wants to, depending upon the particular pressure it is having, or the I would say the fluidity it is having, since it is quite fluid in nature. So it will flow in any direction, right? So it is not rigid, as it cannot have a constant shape. Okay. Now next property says that liquid can have fixed volume but not a fixed shape. Okay. What does the second property says? Liquids have fixed volume but not shape. अब चलिए इसको बहुत अच्छे तरीका है हमारे पास समझने का. दिस इज अ पर्टिकुलरली सिलेंड्रिकल शेप, ओके, और आई वुड से कोनिकल शेप. इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं. ओके, अभी कोनिकल फ्लास्क में देखिए, आई हैव सपोज 30 ml वाटर. ओके, नाउ दिस 30 ml वाटर has occupied, this volume is fixed 30 ml, okay, but this has occupied a shape of a conical flask. If I pour it into a particular beaker, what will happen? It will hold the shape of a beaker. Does the volume has changed? No, it has not. Okay, so this volume is not changed, right? So this has occupied the shape of a particular beaker. Now what if this 30 ml water, I have poured it into a test tube, and this is having a very different shape. As you can see, this particular water or liquid has hold the shape of a test tube. Okay, so here proving what? The property that it has a fixed volume but it does not have a fixed shape. So shape can be held by a liquid, right? So this is the second property. Okay, now the third property says that liquid can flow. अब देखिए, liquid can flow from what? From higher to lower level. Okay, let me write it first. Liquid can flow from higher level to lower level. Now tell me why they can flow from higher level to lower level. See, because of the gravity, right? Because of the gravity. If I start dropping this particular liquid from the higher level, if I start dropping it, it will obviously get flow in the lower level, है ना? Higher level से ही lower level में आएगा. क्यों आएगा? Because of the gravity. Gravity is pulling it towards itself, right? When we are pushing or pulling something in the upwards direction. देखिए, हमारे घर में मोटर पंप होते हैं, है ना? तब हम फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द टॉप मोस्ट लेवल हम पानी पहुंचाते हैं ना. पर वी आर टेकिंग अ हेल्प ऑफ सर्टन pressure
एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तब वो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन आप देखिए, आप जब उसको ऊपर की तरफ रिलीज करते हैं, है ना, अगर आपने ऊपर की तरफ उछाला भी तो ड्यू टू ग्रेविटी इट विल कम डाउन, है ना, वो अपने आप नीचे आएगा। प्रूविंग व्हाट, दैट यस लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ओके, सो यहाँ ये 3 है। फोर्थ इज व्हाट, इट इज लिक्विड आर, आई वुड से दे आर easily compressible. Okay, they are easily compressible. Of course, as compared to solid, they are easily compressible. Why? Because they do not have this character rigidity. Okay, this feature they do not have. They have what? Fluidity. That is why they can be easily compressed. Okay. So comparatively अगर आप बात करते हैं gases के और सॉलिड के, तो सॉलिड के कंपैरेटिवली इट इज़ इजीली कंप्रेसिबल, बट अकॉर्डिंग टू और विथ कंपैरिजन और इन कंपैरिजन विथ गैसेस it is not that much compressible. Okay, so this was about the characteristics or properties of liquid. Now let us talk about the third states of matter, that is gases. Okay, and the properties of gases. Now, properties of gases. The first property says that gas or gases do not have a fixed shape or volume. Okay, we all know they do not have a fixed shape नॉर दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम, है ना। आप चाहें तो किसी भी शेप के इसमें हम गैसेस को फिल कर सकते हैं, किसी भी शेप का कंटेनर हो या सिलेंडर हो या पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट हो जिसमें हम उस पर्टिकुलर गैस को फिल कर सकते हैं। इट कैन होल्ड द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर एंड वॉल्यूम ऑल्सो इट इज़ नॉट फिक्स. वी कैन नॉट से दैट दिस इज द परफेक्ट फिक्स वॉल्यूम फॉर दिस पर्टिकुलर गैस एंड दिस पर्टिकुलर गैस. ओके, सो देयर इज नो सच थिंग happens over here. We in gases neither we have fixed shape nor we have what nor we have this particular वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं कि हाँ चलो इतना इतना ml में ले लिया, इतने इतने kg में कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो इस तरीके का फिक्स कोई वॉल्यूम उसका नहीं होता, ना ही उसका कोई फिक्स शेप होता है. ओके, नाउ द सेकेंड सेज दैट दे कैन फ्लो वेरी इजीली. दे कैन flow very easily. अब देखिए, of course this for this particular property what characteristic they have fluidity, है ना. Fluidity is responsible for this. Since the tendency to flow, they can flow very easily, right? So क्यों इसके पीछे एक रीज़न है. देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखें, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पर इस तरीके का पार्टिकल अरेंजमेंट होता है गैसेस में. अब यहाँ देखिए इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना, this is very high. The space between the particles is really huge. Okay, giving you what, that the particles are having least force of attraction. When they have least force of attraction, when they have intermolecular space is very large, recommending what, doing what, influencing what, that they can flow very easily in any direction. Okay, so because of this reason, because of the arrangement of particles, this particular property is responsible, है ना. जैसा इनका पार्टिकल का अरेंजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड है उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और उसी से रिलेटेड है इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि बहुत ही लीस्ट है और स्पेस कैसा है, बहुत ज़्यादा है. तो इसी वजह से दे कैन फ्लो वेरी इजीली. ओके, सो ये सेकेंड प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आई है ना. अब यहाँ देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करते जाइए, है ना, आप सॉलिड, अगर आपके पास में सॉलिड पार्टिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है तो एक साइड में सॉलिड को, एक साइड में लिक्विड को, एक साइड में
गैसेस को रखिए और तीनों को कंपेयर करना है, करते जाइए और देखते जाइए इनमें क्या क्या कॉमन है या इनमें क्या क्या हमें देखने मिल रहा है। बिकॉज ये डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स कहूँ मैं, ये जनरली आपको शॉर्ट आंसर्स में या इवन आपके MCQs में ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके, तो इन तीनों का आप कॉलम बनाइए और कॉलम बनाकर फिर आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट दे कैन फ्लो, सॉरी दे आर हाईली कंप्रेसिबल। दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, अब यहाँ ये कह रहा है दे आर हाईली कंप्रेसिबल, इसको कैसे समझेंगे आप? ठीक है, सपोज मेरे पास एक जार है, ओके, एंड आई हैव फिल्ड दैट जार विद द गैसेस, एनी सॉर्ट ऑफ गैसेस। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अप्लाइंग अ प्रेशर ऑन इट। ओके, तो जब तक मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ उस जार पर, वो क्या होगा, वो दबते जाएगा, तब तक दबते जाएगा जब तक मैं उस पर प्रेशर अप्लाई करते जा रही हूँ। मतलब वो इतने हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, कांट इवन इमेजिन कि जितना आप प्रेशर एक्सर्ट करते जाएंगे वो उतना क्या होते जाएगा, वो कंप्रेस होते जाता है, उतना दबते जाता है। अब देखिए आपके पास में बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपने 8th स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा, इन द अर्थ क्रस्ट जस्ट above the petroleum and this gases, we have a very small space which is filled up with these gases. Name of the gases is what? CNG and LPG. CNG, LPG. CNG is what? This is compressed natural gas. Okay, and this is liquefied petroleum. So these are present just above the in the earth crust, just above the petroleum part, है ना, ये हमने पढ़ा है in 8th standard। तो हमें पता है कि ये CNG पार्ट, ये CNG हमारे घर में या आपके पर्टिकुलरली व्हीकल्स में, जब आप ऑटोमोबाइल्स के लिए आपने सुना होगा, तो अराउंड एक छोटा सा सिलेंडर होता है जिसमें 15 kg 18 kg तक का जो है वो CNG गैस जो है वो फिल्ड की जाती है। आपके यहाँ जो सिलेंडर आता है LPG का, वो भी देखिए अराउंड 14-15 kg का होता है। तो सिलेंडर का जो पर्टिकुलर अगर आप साइज देखें, उसके अकॉर्डिंग उसका वेट देखें, तो बहुत कंप्रेस होकर उसे फिल किया जाता है ना, दैट इज़ वाई दे बिकम सच हैवियर। ओके, सो ये पर्टिकुलरली कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स में। ओके, राइट, और ये यूज होता है हमारे यहाँ कुकिंग के लिए। तो ये बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, जितना प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, जितना प्रेशर आप एक्सर्ट करते जाएंगे, वो उतने ज़्यादा कंप्रेस जो है वो होते जाएंगे। प्रूविंग व्हाट? यस, दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी सेज दैट दे हैव लो डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी मीन्स व्हाट, मीन्स पर्टिकुलरली जब हम पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो आइदर दे आर डेंसर और लाइटर और हैवियर। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन से दैट दे आर पार्टिकल्स आर डेंसर और लेस डेंसर। ओके, मोर डेंसर और लेस डेंसर, उसके बिहाफ पर हम डेंसिटी को डिनोट करते हैं। ओके, इफ वी डिनोट डेंसिटी बाय D, then density will be equal to mass upon volume। Okay, mass upon volume, this is m by v। Okay, now mass is what? Mass is nothing but the amount of matter contained in a body। Okay, that we have studied, you have studied in physics also। What is mass? Suppose I have this marker, so whatever matter is contained in this particular marker is nothing but the mass। ओके, तो जो भी मेरे पास चीज़ होगी उसमें जितना मैटर कंटेन होगा उस बॉडी में, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसका मास कहलाएगा। ओके, सो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ द वॉल्यूम of that particular particle or that particular substance
okay, is more, density will be less. Okay, if volume is more, then density will be what, less. लेकिन अगर वॉल्यूम, अगर ये कैसा है, इट इज लेस, सो डेंसिटी विल बी मोर. हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस एंड व्हाई इट इज हैपनिंग? क्यों है, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्यों कम हो जाएगी, और जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा क्यों होगी? देखिए, सपोज करिए कि गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है. अब गैस पार्टिकल्स को आपने खुला छोड़ दिया है, तो उसको जितनी स्पेस है, आप देखिए जितना आप उसको ओपन छोड़ेंगे वो उतना वॉल्यूम घेरेगा. अब जितना वॉल्यूम वो घेरेगा तो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा. अब वॉल्यूम बढ़ रहा है मीन्स व्हाट, पार्टिकल्स का डिस्टेंस भी दूर दूर होगा. अब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो वो डेंसर कहलाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे. कहलाएंगे क्या? नहीं. उनकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी? कम. लेकिन यही अगर आपका वॉल्यूम छोटा है और आपने उसमें गैसेस फिल कर दी है, तो उतने कंटेनर में जितना भी गैसेस फिल्ड होंगी वो कैसी होंगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप उसमें क्या करें, उतने ही वॉल्यूम में वो इक्वल अमाउंट की जो पर्टिकुलर गैसेस है वो फिल कर रहे हैं. तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी कम होगी, जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी विल बी मोर. ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. नाउ मास की ऐसा यूनिट अगर हम देखें, सो दैट इज व्हाट, दैट इज ग्राम. और अगर वॉल्यूम की हम देखें तो दैट इज लीटर. तो दैट इज व्हाट एसआई यूनिट, और यूनिट ऑफ पर्टिकुलर डेंसिटी इज व्हाट, ग्राम पर लीटर. और we could say that gram liter to the power -1. ओके, सो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी, मास, वॉल्यूम एंड ऑल. सो आपको इसको समझना ज़रूरी है कि क्या उसकी प्रॉपर्टी कहती है. ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट. सो नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इट सेज दैट दे हैव काइनेटिक एनर्जी, or I could say they have higher kinetic energy. अब देखिए पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पर बहुत ही दूर दूर है, राइट. सो दे कैन मूव, they can easily move or they can easily flow in every direction. Why they can flow in every direction or very easily? Because they possess what? They possess all the three motions, whether it's translatory motion, vibratory motion or rotatory motion. Okay, so because of this translatory, vibratory and rotatory motion, they are allowed to move in all direction. Okay, and that is why they have what? Higher kinetic energy. What is kinetic energy? The energy possessed by a particle, by a body, okay, with respect to what? Motion. Kinetic energy क्या होती है? जो energy possess करता है वो particle in a body, okay, with respect to what? Motion. तो उसके according हम find out करते हैं kinetic energy. तो क्योंकि हमारे पास उस मोशन के तीनों पार्ट्स है ना, ये आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है ना. तो ये मोशंस क्या अलाउ करते हैं गैसेस को, दे कैन मूव, दे कैन फ्लो इन एवरी direction. Okay, they are allowed to flow in every direction. That is why they have what? Higher kinetic energy. Okay, इसीलिए उनके पास कैसी है? Higher kinetic energy है, right? So ये point आपको समझ गया? Okay. Now coming back to the sixth point. Okay, they exert pressure. Now gases exerts pressure. अब देखिए बहुत सारी गैसेस का आपके पास जैसे कलेक्शन है और एक साथ आपने उसको क्या क्या पुश किया है या वो एक साथ जमा हो गई है, तो ऑब्वियसली वो क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है ना. ये बात हमें यहाँ समझ में आती है. लेकिन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बलून. ओके, हम जितना बलून को फुलाते जाते हैं वो क्या होता है? वो फूलते जाता है. पर कब तक फूलेगा? जब तक उसकी कैपेसिटी है, उस बलून की कैपेसिटी है, राइट. जहाँ बलून की कैपेसिटी खत्म हो जाती है वहाँ क्या होगा? That balloon will get burst, right? It will get blow. Okay? तो जब वो ब्लास्ट हो जाता है तो प्रेशर पूरा क्या होता है? रिलीज हो जाता है. जो गैसेस है वो भी रिलीज हो जाती है. सो दिस पर्टिकुलर एयर when you are exerting that pressure with your mouth on the balloon, this particular balloon, the inner wall of that balloon, it is feeling certain pressure. It
it is getting rubbing with that gases, right? So feeling the same pressure. Okay, so that is why we say that gases exert pressure. Now pressure is what? Pressure is nothing but force upon volume, force upon area. Okay, that is F upon A. Pressure is nothing but force upon area. So area will be less, pressure will be more. एरिया विल बी मोर, प्रेशर विल बी लेस. कैसे समझेंगे आप? देखिए, सपोज करिए, चलिए मेरे पास ये चौक है, एक डस्टर है, ठीक है. अब बताइए किसका एरिया कम है, किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली चौक का एरिया कम है और डस्टर का एरिया ज़्यादा है. If I start applying pressure on it, what will happen? If I start applying pressure, it will get break easily, है ना. इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा. अब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूँगी तो इसका एरिया ज़्यादा है, इसको प्रेशर कैसा होगा? थोड़ा कम लगेगा. लेकिन क्योंकि एरिया इसका कम था इसलिए क्या होगा? यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा. इसलिए मैंने कहा था आपसे कि जितना एरिया लेस होगा, ओके, प्रेशर विल बी more. Okay, and if area is more, pressure will be less. ठीक है, जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, जितना एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में दे have all the properties and they have their own reason behind it. Okay, अब इससे एक बहुत अच्छी टर्म जो है वो जुड़ी हुई है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट? दैट इज हियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये आपने बहुत बार सुना होगा, है ना. इन क्लास इन चैप्टर 2 ऑल्सो वी हैव यूज दिस टर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक pressure. देखिए, we all know that our earth is surrounded by a blanket of air, right? And this blanket of air is around all the universe or around the earth, we could say. Okay, so this is nothing but the what? Atmosphere. इसी हम ब्लैंकेट को क्या बोलते हैं? इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. Okay, now this atmosphere is nothing but what? It is gases. Or no, we directly cannot say gases, we can say this is air, है ना, because atmosphere में क्या है? हमारा air ही है, right? So air is nothing but gases and what? It exerts pressure. देखिए, एटमॉस्फेयर क्या है? It's a blanket of air surrounded by or which is present around our earth. Okay, so this is air, and air is what? It is made up of all gases, and gases, what do they do? They exert pressure. So from here we say that atmospheric pressure we count. Okay, यहीं से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करते हैं. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें, है ना, सो व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर. ओके, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, अब इसको आपको बहुत इजीली समझना, हम इसको हमारे नेक्स्ट मैं लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी. अब सिर्फ इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए. द प्रेशर exerted by air or atmosphere is known as atmospheric pressure. Okay? तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे. अभी आप ये सब नोट कर लीजिए. आई होप कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन इन दिस चैप्टर. ओके, इट विल बी आस्क्ड अगेन एंड अगेन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों है, प्रूव देम. सो यू विल बी नीडिंग ऑल द examples and also do note it down as they are really important. I hope that you have understood today's topic, students. Good day and take care.